Hello everyone, my name is Jaideep Mishra and I am going to take your microprocessor and microcontroller subject. The subject code is 3160914. So here is the brief content given by the GTU. So here is a 11 topic in the subject. The first topic contains the microprocessor based system. In this we can learn about the digital computer, microprocessor, microcomputer, microcontroller, and its architecture, and also we can learn the CISC and RISC processors. Okay. The second topic contains the 8085 microprocessor, and it is a very important topic. So in this topic, we can learn about the architecture block diagram of the 8085 microprocessor, its schematic and pin diagram also, all the functions of pin, the bus organization, so and internal operation and resistance, externally initiated operations, serial interrupt and input-output control, timing and control unit, microprocessor communication, multiplexing of address and data bus, generation of control signals, 8085 machine cycles, fetch and execution of only MOV, MIV and out instruction with a timing diagram. Okay, so second topic contains the 10% weightage. So most important topic 8085 microprocessor. The third topic is 8051 microcontroller architecture. In the 8051 microcontroller architecture, we can learn the basic introduction of 8051 microcontroller. Also, we can get the some introduction about the MCS 51 family, and also we can learn about the 8051 microcontroller architecture block. It's a diagram, pin diagram also, and all the functions of available pins on microcontroller 8051. The general purpose and special function register also. Also learn about the oscillator and clock circuit, reset circuit, input output port circuit, memory organization, internal program and data memory. So the introduction point of view, the third topic is 8051 microcontroller is most important. Now the fourth topic is assembly language. So what is the assembly language? Why we are using assembly language in programming of 8051 microcontroller? And how can we program in 8051 microcontroller using the assembly language? We can learn all these things in the fourth topic 8051 assembly language programming. So further we are going, there is a programming model of 8051, addressing mode, programming of 8051 based on data transfer, arithmetic and logical group, branching instruction, bit manipulation instruction, input output port programming, and also we can learn the concept of stack, subroutine and related instructions, writing program for generating time delay, code conversion in assembly language of 8051, and testing the same using IDE. Okay. Then the fifth topic is 8051 programming in C. So here we can learn about the data type of in 8051 C, programming for the time delay, input output programming in the 8051 C, logic operation in 8051 C, control statement and loops in embedded C, function and arrays in embedded C, data conversion programming in 8051C, accessing code ROM space using 8051C, data serialization using 8051C. Okay. Now the sixth topic is 8051 timer control, timer counter and programming. So how can we use counter as a timer? We can learn in this topic. Timer and counter and its associated register, so and various modes of timer and counter operations,
time delay programming, assembly language, and embedded C. Okay. Now the second topic is serial port and its programming. Basic of serial communication. RS-232 standard, which is very important topic. 8051 connection to RS-232, serial data input and output and associated register, various modes of serial data communication program in assembly language or embedded C. Now the eighth topic is 8051 interrupts. So what is interrupts? Concept of interrupts, interrupts versus polling, type of interrupts in 8051, how can we reset it? So interrupt control and its associated register, interrupt vector, interrupt execution, RETI instruction, software generated interrupts, interrupt handler subroutine, timer controller, and serial data transmission, reception in assembly language or embedded C. So external memory interfacing. So memory addressing decoding interfacing at 8051 or 8031 with the ROM and EPROM and data ROM. Okay. The 10th topic is the application and design of microcontroller based system. Interfacing of LEDs, 7 segment display devices, LCD display, DIP switches, push button switches, key denounce technique, keyboard connection, load per the key and matrix form, interfacing to analog to digital converter, digital to analog converter, relay on relay up to isolator stepper motor and DC motor. And the 11th topic is ARM processor fundamentals, which contains the registers, current program status register, pipeline, exceptions, interrupts, and vector table, core extension, architecture revision, and ARM processor families. So here the 3 to 3 to 9 chapter is only about the 8051 microcontroller family. Okay, so now in today's lecture we will going to start the first introduction about the microprocessor 8051. Sorry, 8051 microcontroller. Okay, so now let's start. So now we can get some basic introduction about the microcontroller 8051. So what is the microcontroller? Here it look like this. It is at 89C5124PC0040 microcontroller. Okay, it is Atmel company. Okay, this is also a family of 8051 microcontroller. So first of all, what is the meaning of the microcontroller? Now we can cut microcontroller part into two. First is micro and second is controller. So micro means small and controller means which we can control. Okay, so microcontroller means the which is the is integrated circuit which contains the microprocessor with the memory and associated circuit and controls some of all the function of the electronic device or system, which is called microcontroller. So माइक्रोकंट्रोलर क्या है? तो माइक्रोकंट्रोलर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक माइक्रो और एक कंट्रोलर. माइक्रो का मतलब होता है छोटा, कंट्रोलर का मतलब होता है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअली में है क्या कि माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसी आईसी है जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ आती है, जिसके साथ मेमोरी आती है इनबिल्ट,
और कंट्रोल सर्किट आती है जिसके साथ। और ये माइक्रो कंट्रोलर के यूज से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सारे फंक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो नाउ द सेकंड टॉपिक is introductions. So microcontroller are used in automatically controlled product and devices such as automobile engine control system, implantable medical services, remote controls, office machines, appliances, power tools, toys and other embedded system. तो हम माइक्रो कंट्रोलर कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे भी कुछ भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होती है या फिर कोई डिवाइस होता है तो उसके अंदर हम सिंपल माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मेडिकल डिवाइसेस है, तो आपका रिमोट कंट्रोल है, आपकी ऑफिस मशीन में जैसे कुछ ऑटोमेटिक जेरोक्स मशीन है, कुछ अलग अप्लायंसेस है, कुछ भी कोई पावर टूल है आपका, कोई भी खिलौना है, कोई भी एम्बेडेड सिस्टम होती है तो उसमें हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कौन कौन से फीचर होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर तो होता ही है, साथ साथ में इनबिल्ट रोम होती है, इनबिल्ट रैम होती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, आपके सीरियल पोर्ट्स होते हैं, आपके टाइमर्स होते हैं, आपके इंटरप्ट्स होता है और आपका क्लॉक सर्किट भी होती है। तो अगर हम ये सब चीज को एक ही चिप पे ले आए, एक ही स्मॉल चिप पे ले आए तो हमारी ये एक बहुत ही बढ़िया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक पूरा कंप्यूटर एक सिंगल चिप पे आ गया। ओके, इसीलिए हम उसको कहते हैं कि इट इज एन एंटायर कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप दैट इज एम्बेडेड विद इन एप्लीकेशंस। ओके, अब माइक्रो कंट्रोलर का यूज डोमेस्टिकली भी बहुत होता है, जैसे कि सर एग्जाम्पल के तौर पे वॉशिंग मशीन हो गया, आपका वीसीडी प्लेयर हो गया, आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया, आपका रोबोटिक्स हो गया। तो ऐसी सब जगहों में हम माइक्रो कंट्रोलर्स बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, नाउ अब माइक्रो कंट्रोलर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले ली, अब उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं कि अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या क्या आता है अंदर। चलिए, तो कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, तो हम अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है इसका सीपीयू, सेकंड पार्ट आता है इसका रैम, थर्ड पार्ट आता है इसका रोम, फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट, फिर टाइमर, फिर सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट। तो ये 6 टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर के कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो आपको नाम याद रखना है, ब्लॉक डायग्राम याद रखना है। ओके, और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कौन कितना डेटा ऑक्यूपाई करता है, मीन्स कौन कितना डेटा प्रोवाइड कर सकता है या फिर कितना डेटा आपको दे सकता है वो ध्यान रखना है। तो जो रोम होती है वो 4 किलोबाइट की होती है, कहा किसमें, आपकी 8051 में। ओके, रैम होती है वो 128 बाइट की इंटरनली होती है। आपके 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं P0 से P3। अब ये 8 बिट क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे 8 बिट होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी डेटा बस की। ओके, मीन्स आपका एक डेटा आपका मिनिमम 8 बिट का होता ही है। ओके, ये भी ध्यान रखना है कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ओके, 16 बिट इज इक्वल टू 2 बाइट, 24 बिट इज इक्वल टू 3 बाइट। ओके, फिर कंपोनेंट पे आ जाते हैं हम। तो माइक्रो कंट्रोलर का अगला कंपोनेंट है हमारा टाइमर्स एंड काउंटर्स। तो हमारे पास 8051 में 16 बिट के 2 टाइमर और 2 काउंटर होते हैं। एक सीरियल इंटरफेस होती है। सीरियल इंटरफेस का मतलब है कि हम वहाँ ये
कम्युनिकेशन का एक जरिया है हमारे बीच में और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, हम वहां से इनपुट ले भी सकते हैं, आउटपुट मतलब हम इनपुट दे भी सकते हैं, वहां से आउटपुट ले भी सकते हैं। ओके, नाउ द सिक्स्थ इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारा सीपीयू होता है। सीपीयू मतलब हमारा एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिससे हम कोई भी मैथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कोई भी मैथमेटिकल चीज हम कर सकते हैं। ओके, तो आइए फिर जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डीप में। ओके, एक एक कंपोनेंट के बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सीपीयू के बारे में। तो देखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी वो बता देता हूँ। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो डायग्राम है सीपीयू का यानी एएलयू का, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक जानकारी के लिए दिया हुआ है कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 का जो सीपीयू होता है, उसे हम एएलयू भी कहते हैं। एएलयू मीन्स एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि सारे ही एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जितने होते हैं वो सब परफॉर्म करता है। ओके, अब आगे देखते हैं हम सेकंड, रैम। तो अगर हम हमारा कंप्यूटर खोलते हैं, अगर आपने अपना कभी कंप्यूटर खोला है तो आपको रैम कुछ इस टाइप की दिखेगी सीपीयू के अंदर। तो ये जो रैम होती है उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो अब रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका होता है कि ये जो हम सॉरी, ये एक टाइप की एक वॉलेटाइल टाइप की आपकी मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है आपकी, ये परमानेंट नहीं होती है। परमानेंट मतलब आपका अगर कुछ भी किसी भी हिसाब से अगर आपका कोई जैसे पावर, आपका डिवाइस स्विच ऑफ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, पावर कट हो जाता है, तो जो आपका जो भी डेटा है वो सेव नहीं रहेगा। इसीलिए हम इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, या तो फिर हम इसे टेम्पररी मेमोरी भी बोल सकते हैं। ओके, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है। नाउ तो माइक्रोकंट्रोलर 8051 हैज 128 बाइट रैम फॉर डेटा स्टोरेज। तो जो एक रैम होती है, मीन्स ये जो ब्लैक वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये एक रैम है। तो ये एक रैम आपकी 128 बाइट आपकी स्टोर कर सकती है एट अ वन टाइम। ओके, आगे तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि इसे हम वॉलेटाइल टाइप की मेमोरी कहते हैं, यानी आपके परमानेंट नहीं होती है। आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है जब पावर आपका या डिवाइस आपका बंद हो सकता है, बंद हो जाए तो। ओके, इसीलिए हम उसे टेम्पररी टाइप मेमोरी भी कहते हैं। अब रैम में ऐसा क्या होता है कि वो डेटा स्टोर कर सकता है? तो रैम कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर बैंक, स्टैक एंड टेम्पररी डेटा स्टोरेज विद सम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या है, कौन से हैं, हम थोड़ा आगे बाद में जानकारी लेंगे। ओके, नाउ द थर्ड टॉपिक इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी कुछ इस टाइप की दिखेगी आपको। ओके, अब रीड ओनली मेमोरी होती है वो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी का मतलब क्या होता है कि आपका अगर आपका पावर कट भी हो जाता है, अगर आपका डिवाइस बंद भी हो जाता है, तो जो भी डेटा आपने रीड ओनली मेमोरी में सेव किया है वो आपका डिलीट नहीं होता, यानी लॉस्ट नहीं होता। ओके, सो 8051 में क्या होता है, स्टोरेज कितनी होती है? सबसे पहले तो स्टोरेज अपने आगे भी देख चुके हैं कि 4 KB रोम होती है प्रोग्राम के स्टोरेज के लिए। रीड ओनली मेमोरी में 8051 के अंदर ये आपकी रोम है, रोम का एक पैक है, ऐसे कई पैक हो सकते हैं आपके। ओके, तो 8051 हैज 16 बिट एड्रेस। अब ये 16 बिट एड्रेस का मतलब क्या है? मीन्स कि आपका जो
आप डेटा बस जो आपकी होती है वो 16 बिट का एड्रेस आपका ले जा सकती है। अब आप बोलेंगे सर डेटा बस क्या होती है? तो डेटा बस का मतलब होता है कि जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या तो आपका जो भी डेटा है, तो वो डेटा मिनिमम या सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम कितने बिट का एड्रेस ले जा सकता है, वो आपका डिनोट करता है 16 बिट एड्रेस। ओके, जैसे आपका 16 बिट एड्रेस है तो उसका मतलब क्या है कि आपकी मेमोरी में कितना लोकेशन तक, कितने लोकेशन यानी आपकी मेमोरी में कितना जगह वो रोक सकता है। तो 16 बिट मेमोरी का मतलब है 2:16, यानी मिनिमम टू मिनिमम आई थिंक 64 केबी। ओके, 64 केबी तक का जो आपका मेमोरी है वो ऑक्यूपाई कर सकता है एक एड्रेस। वन 16 बिट एड्रेस कैन ऑक्यूपाई अप टू 64 केबी प्रोग्राम। ओके, और उसके अलावा अगर आप 64 केबी तक का कोई प्रोग्राम अलग से आप दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नली भी आप उसकी मेमोरी को इंटरफेस करवा सकते हैं। ओके, तो रीड ओनली मेमोरी का ये फायदा है कि आप इसमें अलग से भी, बाहर से भी, एक्सटर्नली भी आप अलग से रोम ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज टाइमर्स एंड काउंटर्स। टाइमर्स एंड काउंटर्स के लिए हमारे 8051 में दो पिन होती है। कौन कौन सी पिन होती है? एक T0 होती है और एक T1 होती है। सो टाइमर का मतलब क्या है? टाइमर का मतलब ये है कि हम एक, जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, यानी कि जो भी हम डेटा देते हैं, तो वो डेटा को एग्जीक्यूट होने के बीच में कितना टाइम हमें देना है, कितना टाइम डिले हमें देना है, तो वो डिसाइड हमारा टाइमर करता है। तो टाइमर का फंक्शन सिंपल है कि इट्स जनरेट अ डिले of a particular time in a timer mode. So there are two types of pin available in 8051 microcontroller. First is T0 and second is T1. Now the counter. So what is counter? So counter is count external pulses or events in a counter mode. It means जब भी आपकी दो इंस्ट्रक्शन कोई पर्टिकुलर टाइम में रन हो रही है, ओके, तो वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के बीच में आपकी कितनी परफॉर्मेंस, यानी आपके कितनी इंस्ट्रक्शन रन हो रही है या कितनी इंस्ट्रक्शन आपकी गई, यूज हुई, उसका काउंट कौन करेगा? काउंटर करेगा। ओके, नाउ हमारे जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर दो 16 बिट का टाइमर रजिस्टर होता है, यानी T0 और T1। T0 को हम TH0 और TL0 ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और T1 को भी हम TH1 और TL1 के रूप डिवाइड कर सकते हैं। ये कैसे होगा? TH0 और TL0, तो 16 बिट का जो टाइमर रजिस्टर होता है आपका, तो उसमें अगर आपको हायर 8 बिट अगर आपको लोड करना है, तो हायर बिट 8 बिट का लोड आपका TH0 में लोड होगा और बाकी का आपका लोअर में TL0 में लोड होगा। T-mode or T-con register are used to select mode and control timer and the timer operation. ओके, तो ये T-mode और ये T-con, ये दोनों एक पिन है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर। जो पिन हमें कंट्रोल कौन सा, मतलब मीन्स हमें कौन सा मोड यूज करना है, मीन्स टाइमर मोड यूज करना है कि काउंटर मोड यूज करना है और कब यूज करना है, उसके बारे में हमें बताती है। Okay, now the fifth topic is serial communication port. Serial communication port means क्या होता है? जैसा मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जब आपको ब्लॉक डायग्राम बताया था, तब आपको कहा था कि जो सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट होता है वो कम्युनिकेशन
के लिए यूज होता है। कैसी कम्युनिकेशन? हमारे बीच में और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में, मीन्स हमारे द्वारा लिखा गया जो प्रोग्राम है उसका और कम्युनिकेशन यानी कि जो माइक्रो कंट्रोलर है उनके बीच में यूज होता है। तो 8051 में दो सीरियल कम्युनिकेशन पिन्स होती है, एक का नाम है TXT, एक का नाम है RXT। क्या जो TXT होती है, TXT पिन हमारी ट्रांसमिटिंग पिन होती है और जो RXT होती है वो हमारी रिसीविंग पिन होती है। अभी ये जो पिन होती है वो किस रजिस्टर थ्रू हमारा ट्रांसमिट और रिसीव करती है डेटा, तो उस रजिस्टर का नाम है SBUF रजिस्टर। ओके, तो आप नाम याद रखेंगे SBUF रजिस्टर। ओके, अब उसके अलावा एक और रजिस्टर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है, उसका नाम क्या है? एसकॉन रजिस्टर। अब एसकॉन रजिस्टर क्या करता है? जो सीरियल ऑपरेशन होते हैं उनको कंट्रोल करता है, मीन्स कौन सा डेटा कब ट्रांसमिट होगा या कौन सा डेटा कब रिसीव होगा उसको कंट्रोल करता है हमारा एसकॉन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ओके, यानी एसकॉन SFR। गॉट इट? ओके, नाउ द सिक्स्थ टॉपिक इज इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो 8051 जो पोर्ट होता है उसमें 4 पोर्ट होते हैं आपके इनपुट आउटपुट के, P0, P1, P2 एंड P3। सभी पोर्ट आपके 8 बिट वाइड होते हैं और जो उनके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं वो अलग होते हैं, यानी कि जो आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं वो अलग तरीके से यानी स्पेशली आपके एक्सेसिबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम उनको सेट या रीसेट भी कर सकते हैं। मीन्स जैसे आपका कोई फंक्शन आपका, जैसे समझ लीजिए कि कोई पोर्ट आपका P0 पे लगा, P0 पे जो भी पिन है, P0 पे जितनी पिन है उसमें कुछ आपका कुछ काम हो रहा है, मीन्स कुछ डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन हमें अभी वो P0 से हटा के हमें P1 पे ले जाना है, तो हम ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है माइक्रो कंट्रोलर में। तो इसीलिए जो होते हैं जो 8 बिट जो हमारे स्पेशली एक्सेसिबल इसे हम रीसेट भी कर सकते हैं। ओके, जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं उनमें से कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी ड्यूअल फंक्शनलिटी होती है, यानी कि पोर्ट जैसे P0 है तो उसमें पिन आएगी आपकी 1 से लेके 8 तक। तो 1 से 8 में जो पिन आती है वो पिन में जैसे आप उनकी ड्यूअल फंक्शनलिटी होती है। ड्यूअल फंक्शनलिटी मतलब क्या होता है कि आपके एक साथ या तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम कर सकते हैं, मतलब एक ही पिन से हम दो यूज कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशाने। ओके, ये वाली बात है। नाउ अब आप स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि सर आप कब से माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर कहे जा रहे हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस होगा उनके बीच में। ओके, तो हम उनके डिफरेंस के बारे में भी जान लेते हैं, तो थोड़ा कंपैरिजन भी कर लेते हैं। आ जाइए कंपेयर करते हैं थोड़ा, चलिए। तो कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। सो माइक्रोप्रोसेसर इज अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स कोई भी कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट क्या कहलाता है? उसका माइक्रोप्रोसेसर। अभी आप कोई भी लैपटॉप या कोई भी कुछ भी खरीदने जाते हैं, नया कंप्यूटर या नया डेस्कटॉप लेने जाते हैं, तो आप पहला सवाल यही होता है कि कौन सा प्रोसेसर है इसके अंदर। आपका इंटेल का i7 है, i10 है, कौन सा है? कोर टू डियो प्रोसेसर है आपका, फिर आपका पेंटियम प्रोसेसर है, या कौन सा प्रोसेसर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो एक टाइप का आपका हार्ट होता है कंप्यूटर का। वैसे ही जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो एम्बेडेड सिस्टम का हार्ट होता है। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे आपकी कोई भी आपकी सिस्टम हो गई, जैसे आपका ट्रैफिक लाइट है। ओके, तो ट्रैफिक लाइट में आपका बिना माइक्रो कंट्रोलर आप उसको ऑटोमेटिकली
चलने के लिए मजबूर, मतलब ऑटोमेटिकली चलने के लिए उसको प्रोग्राम नहीं कर सकते विदाउट माइक्रो कंट्रोलर। यानी आप देख सकते हैं कि जैसे वहाँ पे एलईडी लाइट लगी होती है, तो आपका उसमें टाइमिंग चलता रहता है। जैसे ही टाइमिंग पूरा होता है वैसे ही आपका रेड लाइट शुरू हो जाती है, फिर टाइम खत्म होता है तो आपकी आपकी ऑरेंज लाइट शुरू हो जाती है, फिर ग्रीन लाइट होती है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्यों होती है, किस वजह से होती है, और मतलब कौन करवाता है, तो वो चीज़, वो प्रोसेस आपका माइक्रो कंट्रोलर थ्रू होती है। तो इसीलिए हम माइक्रो कंट्रोलर को हार्ट कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम का। अब माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, सिर्फ प्रोसेसर होता है, उसके अंदर जो मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको एक्सटर्नली यानी बाहर से हमें कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं होता। माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट ही आपको प्रोसेसर के साथ साथ आपके इंटरनल मेमोरी आती है, इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स भी आपको मिल जाते हैं। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज memory and input output has to be connected externally so the circuit becomes large। जो इनपुट आउटपुट और मेमोरी के जो बाहर से लगाई जाती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, इसीलिए उसकी जो सर्किट होती है वो बड़ी हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं है कि आपकी जो मेमोरी और इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी अंदर इनबिल्ट ही प्रेजेंट रहते हैं, तो जो सर्किट होती है वो स्मॉल रहती है। ओके, नाउ द अनदर, और भी है हमारे पास थोड़े बहुत कंपैरिजन और हैं, टोटल 10 है कंपैरिजन, ये 3 हुए, आगे देखते हैं अपने। तो ये 4 और हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं कि हम जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको कॉम्पैक्ट सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते। कॉम्पैक्ट सिस्टम मतलब छोटी सिस्टम। अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आगे पहले उसका रीज़न आ गया कि उसके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जो उनकी मेमोरी होती है, वो सब आपका बाहर से एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है, इसीलिए उसकी सर्किट बड़ी हो जाती है, इसीलिए हम उसके कॉम्पैक्ट सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर को कॉम्पैक्ट सिस्टम में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनबिल्ट मेमोरी और बाकी का जो प्रोसेसर है वो सब उसके इनबिल्ट आता है। ओके, बाहर से सब चीज़ें ज्वाइन करते हैं, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर की जो सिस्टम की कॉस्ट होती है वो हाई होती है। आप देख ही रहे होंगे कि आपका जो पीसी होता है, कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है, तो वो महंगा आता है एज पर दी कौन सा उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली उसका कॉस्ट हाई होती है। लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर जो बेस्ड सिस्टम होती है, जो एम्बेडेड सिस्टम होती है, उसका प्राइस लो होता है। आप 7 सेगमेंट एलईडी देख लीजिए जो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ऑपरेट होती है, तो उसका प्राइस एज कम्पेयर टू दी आपके लैपटॉप से कम होता है। तो वो क्यों कम होता है, आपको रीज़न पता है, मैंने बता दिया आगे कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, और आपका सब कुछ अवेलेबल रहता है एक सिंगल चिप के ऊपर। ओके, अब माइक्रो प्रोसेसर में एक्सटर्नल कंपोनेंट्स यूज होने के वजह से जो पावर कंजम्पशन होता है इनका वो हाई हो जाता है। सो ये जो बैटरी के ऊपर चलते डिवाइस हैं, बैटरी से या तो फिर बैटरी पावर्ड डिवाइसेस जो होते हैं, या तो फिर आपकी खुद बैटरी, उसमें यूज नहीं हो सकते। लेकिन ओके, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर में होता है कि आपका पावर कंजम्पशन लेस होता है, इसीलिए बैटरीज पे चलने वाले जैसे आपका खिलौने हो गए, जैसे आपका रोबोट्स हो गया, जो हम बैटरीज पे कभी रन कर सकते हैं, तो हम उसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। ओके, माइक्रो प्रोसेसर के पास पावर सेविंग का कोई फीचर अवेलेबल नहीं है, पर माइक्रो कंट्रोलर के पास पावर सेविंग मोड का अवेलेबल है। ओके, तो ये 4 हो गए इसके कंपैरिजन, इससे पहले हमने 3 किए यानी टोटल 7, अब 3 और करते हैं यानी कि 10। ओके, जीटीयू में कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का एक क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से पढ़ना और सभी याद रखना। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर में जो होता है स्मॉलर नंबर ऑफ रजिस्टर, यानी जो रजिस्टर जो होते हैं जो यूज होता है डेटा सेव के लिए, वो कम होते हैं।
इसीलिए जितने भी ऑपरेशन होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, मीन्स रैम पे और रोम पे डिपेंडेंट रहते हैं वो। बट माइक्रो कंट्रोलर में ज़्यादा रजिस्टर होता है, मीन्स हम उस पर स्टोरेज ज़्यादा, डिवाइसेस मीन्स हम उसमें ज़्यादा डेटा सेव कर सकते हैं, प्रोग्राम्स हम लोग उसके अंदर इजीली लोड कर सकते हैं। तो जो भी ऑपरेशन माइक्रो कंट्रोलर थ्रू होता है वो मेमोरी बेस्ड नहीं होता। माइक्रो प्रोसेसर के पास रैम नहीं है, रोम नहीं है, इनपुट आउटपुट यूनिट नहीं है, टाइमर नहीं है, और अदर जो भी चीज़ें हैं वो चिप पे नहीं होती। उससे उल्टा माइक्रो कंट्रोलर के पास सब होता है, सीपीयू होता है, रैम होती है, रोम होता है, और बाकी के जो भी सिस्टम होती है वो एक सिंगल चिप पे अवेलेबल होती है। अब आखिरी, it uses an external bus to interface the RAM, ROM and other peripherals। जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी माइक्रो प्रोसेसर में बिटवीन द कंपोनेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, मीन्स आपका जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, फिर सीपीयू हो गया, तो उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर होगा वो हम एक्सटर्नल बस का यूज करके हम करेंगे। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनली कंट्रोलिंग बस अवेलेबल होती है, इसलिए बाहर से हमें किसी भी टाइप के कोई भी टाइप की वायरिंग की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, तो ये थे कुछ कंपैरिजन माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में। अब थोड़ी फैमिली के बारे में भी जान लेते हैं कंट्रोलर की, कि कंट्रोलर की फैमिली क्या क्या है, कौन सी है। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक खाली आपके नॉलेज के लिए मैंने ये आपके पीपीटी में अवेलेबल कर दिया है। तो ये कुछ फैमिलीज है, मीन्स कुछ फैमिली मेंबर है 8051 के, तो उसके बारे में जानकारी है। यहाँ पे कितनी रैम है, कितनी रोम है, अंदर कितने टाइमर हैं, कितने सोर्सेज हैं, कितनी इनपुट आउटपुट पिन है, और कुछ अदर चीज़ें भी इसके अंदर दे रखी है। जैसे 808951 है आपका, तो उसके अंदर 4K मेमोरी है, रोम है, 128 बाइट है ये, BYTE बाइट। ओके, एंड देन 2 टाइमर है, 6 सोर्सेज हैं, और 32 इनपुट आउटपुट की पिनें अवेलेबल है। 8952 है, उसके अंदर 8K रोम है, 256 रैम है, 3 टाइमर्स हैं, 8 सोर्स हैं, 32 इनपुट आउटपुट पिन अवेलेबल है। नाउ 8953 has a 12K ROM, 256 RAM, here is a byte, 3 timer, 9 in sources, 32 pins, and the other things is WD. Now the what is WD? It is a timer. It is a type of timer. Okay. Now 8955, it has 20K ROM, 256 RAM, 3 timers, 8 source, input output pin, and there is a other things is WD, which is watchdog timer. Now other is 898252, family members of 8051 microcontroller. It has 8K ROM, 256 RAM, 3 timers, 9 source, and 32 input output pins, and it has ISP. Now the what is ISP? It's in system programmable. Okay. Now 891051, it has a 1K ROM, 64 RAM, 1 timer, 3 source, 16 input output pin, and AC. AC means here analog comparator. It is extra facility, okay, in microcontroller, which is provided by the manufacturer. Now the last one is 892051, which has 2K ROM, 128 byte RAM, 2 timer, 6 source, and 16 input output pin, and it also has a 1 extra AC. AC means analog comparator. So this is the overview of 8051 family.
members. Okay guys, okay students, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे, उसका पिन डायग्राम देखेंगे, सारी पिन का यूज क्या है वो भी देखेंगे। ओके ओके, नाउ टेक केयर गाइस।